ناظرین سب سے بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ لاکھوں اسرائیلی افواج غزہ سے وڈرا کر چکی ہیں۔ وہ جو بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ غزہ کو مٹانے کے لیے نکلے تھے اب وہ غزہ سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، کیونکہ بھاری نقصان ان کو اٹھانا پڑا، عبرتناک شکست ہوئی ہے اور اب وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ اہم ترین تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصر پوری طرح سے جنگ میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ پوری تیاری مصر کی جانب سے کی جا چکی ہے، کیونکہ غزہ کے لوگوں کو ڈسپلیس کیے جانے کا پورا پلان بنا ہوا ہے اور اس کو روکنے کے لیے مصر اب جنگ میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ اور رشین انٹیلیجنس نے کیا کارروائی کی ہے اور نیتن یاہو کا پلان کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ایک بہت بڑا سائبر حملہ ایک بار پھر ان کی ملٹری پر کیا گیا ہے، جس نے غزہ جنگ میں ان کا جو انٹیلیجنس کا نظام ہے اس کو دھرم برم کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ اہم ترین تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے جو بہت بڑی خبر ہے اس وقت پوری دنیا کی میڈیا پر جو چھائی ہوئی ہے، سب سے زیادہ وائرل خبر ہے وہ یہ کہ جو اسرائیلی افواج ہیں وہ غزہ سے وڈرا کر چکی ہیں۔ جی ہاں، ابھی انہوں نے دوبارہ سے جنگ مسلط کی غزہ پر اور اس ارادے سے نکلے کہ اب کی بار تو ہم غزہ کو ملیا میٹ کر دیں گے، کوئی بلڈنگ ہم نے یہاں پر نہیں رہنے دینی، کسی فلسطینی کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ یہ پلان یہ فرعون لے کر نکلے تھے، لیکن پھر ان کو اتنی شکست اور ناکامی اٹھانا پڑی۔ آپ دیکھیں کہ روزانہ ہنڈریڈز آف ان کے فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ ایک ایک حملے میں 60 فوجیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کے خود چیف، ان کا میڈیا یہ مان چکا ہے کہ اس طرح کی شکست اسرائیل کی پوری تاریخ میں ان کو کبھی نہیں ملی ہے۔ تو اتنا بھاری نقصان دیکھنے کے بعد اب انہوں نے فوجیں جو ہے وڈرا کر لی۔ یہ آپ سکرین پر دیکھ لیجئے کہ 70% جو فورسز بھیجی گئی تھی وہ ان کو وڈرا کر لیا گیا ہے۔ اب ٹوٹل جو ہیں وہ 4 لاکھ کے قریب فورسز غزہ کو بھیجی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں سے 70% وڈرا ہو گئی ہیں۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے اپنے فوجی جو ہیں وہ واپس بلا لیے ہیں۔ اب اس کی جو 2-3 بڑی وجوہات ہیں وہ یہ، ایک تو ملٹری ایکسپرٹس کے مطابق سب سے بڑی وجہ ان کی ناکامی ہے کہ اتنی زیادہ فوج لگا کر بھی ان کو اتنا ڈبل نقصان ہو رہا ہے۔ جتنے زیادہ فوجی اندر جا رہے ہیں، جتنے زیادہ ٹینک اندر جا رہے ہیں، جتنی زیادہ گاڑیاں اندر جا رہی ہیں، اتنی ہی بڑی تعداد میں تباہی ہو رہی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ اتنی لاکھوں کی فوج بھیج کر بھی ان کو کامیابی نہیں مل رہی، لہٰذا انہوں نے ان کو وڈرا کر لیا کہ یہ تو جتنے زیادہ جا رہے ہیں اتنے زیادہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ ہے کہ ایکسپینس بہت زیادہ آ رہا ہے۔ جب آپ کے لاکھوں فوجی وہاں پر کھڑے ہیں اور وہ کوئی کامیابی بھی حاصل نہیں کر پا رہے اور وہ آپ کو وکٹری کی طرف نہیں لے کر جا رہے، تو ان کا جو اتنا ایکسپینس ہے، لاکھوں فوجی وہاں پر ہیں، تو بہت زیادہ ایکسپینس اس وقت اسرائیل کو آ رہا ہے، تو اس ایکسپینس کو بھی کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تیسری سب سے بڑی وجہ ہے ان کی بدنامی۔ وہ اس طرح سے ہے ناظرین کہ ان کے سامنے چند ہزار فائٹرز ہیں اور وہ لاکھوں کی افواج ہیں، وہ دنیا کی سب سے ایڈوانس افواج کہی جاتی ہیں، وہ ان کے پاس سب سے جدید ٹینکس، فضائیہ اور نیوی ہے، دنیا کی سب سے جدید جو ٹیکنالوجی ہے وہ ان کے پاس ہے۔ مغرب اور امریکہ کی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز ان کی مدد کر رہی ہیں، ساری جو جس طرح کی بھی ٹیکنالوجی انٹیلیجنس استعمال کرتی ہے وہ ساری ان کو دی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بدنامی بھی ہے کہ اتنا طاقتور پہلوان کے سامنے بازار دکھنے والے اتنے کمزور پہلوان کھڑا ہے اور پھر بھی کمزور پہلوان جو ہے ان کو تھپڑ مارے جا رہا ہے۔ تو یہ ان کے لیے بدنامی کا بھی پوری دنیا میں باعث ہے کہ وہ ان کی جو طاقت ہے وہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو رہی ہے۔ سو ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہاں سے 70% اپنی فورسز وڈرا کر لی ہیں۔ اور میں آپ کو نقشے کے ذریعے پہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی تک ہیں کہاں پر۔ یہ آپ یلو ایریاز جو دیکھ رہے ہیں بارڈر کے بالکل ساتھ ساتھ، صرف یہاں تک یہ پہنچے ہیں۔ اتنے دنوں کی جنگ کے بعد، اتنے وسائل استعمال کرنے کے بعد صرف یہ بارڈرز کے ساتھ ساتھ ہے۔ اور یہ بھی بارڈر کا ناظرین وہ ایریا ہے کہ جو ویڈیوز اگر آپ دیکھتے ہوں تو یہ بارڈر کے وہ ایریاز ہیں جن کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے، یعنی یہاں پر اتنے بم برسائے گئے کہ جو عمارتیں تھیں وہ مکمل طور پر ملیا میٹ ہو گئیں۔ تو اس طرح بالکل یہ میدان بن گیا۔ اس میدان میں انہوں نے تھوڑا سا پینیٹریٹ کیا، ٹھیک ہے، اس لیے یہ بارڈر کے ساتھ ساتھ جو تھوڑا سا جتنا بھی اندر پینیٹریٹ ہوئے ہیں وہ صرف اس صورت میں ہوئے ہیں، باقی یہ مکمل طور پر جو ہے جو ان کا ہدف ہے کہ غزہ سٹی تک جانا ہے اس سے یہ بہت دور ہیں اور بالکل اتنے دنوں میں بھی ذرا سے ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت بڑی خبر ہے کہ انہوں نے اپنی فورسز وڈرا کر لی ہیں اور یہ بھی ان کی جو ناکامی ہے اب وہ آن ریکارڈ آ چکی ہے کہ آپ پیچھے تب ہی ہٹتے ہیں نا کہ جب آپ ناکام ہو رہے ہو۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غزہ پر قبضہ کرنا ہے، پھر آپ پل بیک کیوں کر رہے ہیں، پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اٹس مین کہ آپ کو ریزسٹنس اتنی ہو رہی ہے کہ آگے آپ پینیٹریٹ کر ہی نہیں پا رہے، آگے آپ چل ہی نہیں پا رہے، وگرنہ آپ کبھی پیچھے نہ ہٹتے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بہت بڑا انکشاف سامنے آیا اور اس کا ثبوت بھی آپ سکرین پر دیکھ لیجئے کہ اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ خود اپنی جانیں لے رہے ہیں، وہ خود جو ہے اپنی جانیں ختم کر رہے ہیں کیونکہ وہ غزہ میں لڑنا نہیں چاہتے۔ جی ہاں، اس سے پہلے آپ کو ہم نے رپورٹ کیا تھا، خود اسرائیلی میڈیا اس کی تصدیق کر
चुका है। उन्होंने रिपोर्ट किया कि किस तरह हजारों की तादाद में जो इनके फौजी हैं वो बगावत कर चुके हैं, वो अपनी फौज को छोड़कर जा चुके हैं। जब मुआहिदा चल रहा था उस दौरान बहुत बड़ी तादाद थी, हजारों की तादाद में इनके फौजी जो थे वो छोड़कर चले गए, क्योंकि उनको अपने ऑफिसर से बहुत ज्यादा शिकायत है कि जब हम घात में हमारे साथी फंस जाते हैं तो ये वहां से फरार हो जाते हैं और हमारी मदद को कोई नहीं पहुंचता, इसलिए हमारे कितने ही साथी फौजी जो हैं वो मारे गए हैं, तो हमने बिल्कुल नहीं लड़ना, अगर हम जंग में जाएंगे तो फिर हम भी मारे जाएंगे। तो इस वजह से फिर इनके बहुत सारे ऑफिसर्स और कमांडर्स को डिसमिस भी किया गया। सो एक रिवोल्ट तो वहां पर हुआ। अब ये वाला जो रिवोल्ट हुआ है ये अभी ताजा तरीन इस वक्त जो जंग चल रही है उस दौरान हुआ है कि बहुत सारे फौजियों ने लड़ने से इनकार कर दिया और जिनको फोर्स किया जाता है, मतलब जिनको आप कहते हैं नहीं आपने लड़ना ही लड़ना है, उनको जबरदस्ती भेजने की कोशिश की जाती है तो वो खुद अपनी जान ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि इसको आप दुनिया की सबसे बड़ी फौज समझते थे और इसको आप कहते हैं पता नहीं इनके पास क्या टेक्नोलॉजी और क्या ये जबरदस्त फौज है, क्या इनकी जंगी सलाहितें हैं, वो गजा में नहीं लड़ने जा रही और खुद अपनी जाने ले रही है, क्योंकि उनको लगता है कि वहां पर जाकर उनके साथ जो होनी है। आप देखें ना कि उनका मीडिया खुद इस बात को तस्लीम कर रहा है कि यह तारीख की बदतरीन शिकस्त उनको हो रही है और सबको अपने अंजाम का पता है, तो वो नफ्सियाती मसाइल का भी शिकार हो गए हैं। यानी आप अब यहां पर अपनी जान ले रहे हैं तो वहां पर लड़कर जान दे देना, लेकिन ये सब अब नफ्सियाती, क्योंकि ये बुज़दिल है ना, बुज़दिल जो बंदा होता है ना वो कभी भी इस तरह से आगे नहीं जाता, क्योंकि इनकी जो सारी नाज़रीन ट्रेनिंग हुई है अब उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो सारी ट्रेनिंग हुई है ना इनकी वो औरतों और बच्चों के खिलाफ हुई है। इन्होंने मुसलसल औरतों और बच्चों के खिलाफ जंग की है, निहत्ते औरतों और बच्चों को पकड़ा हुआ है, यही इनकी ट्रेनिंग है। इनको असली फाइटर के साथ लड़ना सिखाया ही नहीं गया, इनकी कभी वो वाली ट्रेनिंग हुई नहीं, इसीलिए जब इनके सामने कोई टक्कर के आए हैं तो अब ये पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, कुछ बगावत करके भाग रहे हैं और कुछ खुद अपनी जाने ले रहे हैं। इसके अलावा जनाब मज़ामती तहरीक ने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है, वो है इन पर साइबर हमला। अब कुछ साइबर हमले तो वो हैं जो बाहर से किए गए हैं, जो बहुत सारे हैकर्स इन पर कर रहे हैं, यानी अगर कोई रशिया का हैकर भी है या कोई यूरोप में भी बैठा हुआ है वो फलस्तीन से हिमायत के तौर पर कर रहा है और ईरानी हैकर्स बहुत ज्यादा इन पर अटैक्स कर रहे हैं। लेकिन ये वाला जो इन पर साइबर अटैक हुआ है वो खुद मज़ामती तहरीक ने किया है और वो क्या अटैक हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है नाज़रीन, कि इन्होंने इनकी जो फौजी कम्युनिकेशन है उसको हैक किया और उसको हैक करने के बाद इनके जो रिजर्व फौजी बैठे हुए थे उनको टेक्स्ट मैसेजेस किए कि रिटर्न टू सर्विस, कि आप जो है वो वापस आ जाएं। वो अपने फौजियों को विड्रॉ करवा रहे हैं, ठीक है, कि हमारा इतना नुकसान हो रहा है, हमारा खर्चा बढ़ रहा है, हमारी बदनामी हो रही है, और ये उनकी कम्युनिकेशन को जनाब करके हैक करके और उनके जो रिजर्व में बैठे हुए हैं पीछे उनको मैसेजेस करी जा रहे हैं कि तुम आ जाओ तुम आ जाओ। तो इस तरह उनका पूरा जो निज़ाम है वो दरम बरम हो गया। जब वो पहुंचना शुरू हुए हैं तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो मतलब जब भी आपको फौजी आकर रिपोर्ट करता है तो आपको पता होता है कि उसको आपने बैक टू सर्विस किया या नहीं, यानी ये कोई रेगुलर आर्मी तो नहीं है, ये रिजर्व जो फौजी होते हैं ये इमरजेंसी की सूरत में रखे जाते हैं कि जब इनको बुलाया जाता है। तो जब उन्होंने रिपोर्ट करना शुरू किया बहुत सारे फौजी वापस आए बैक टू सर्विस, तो ये पता चला कि इधर से तो कोई मैसेज हुआ ही नहीं। देन फिर ये बात सामने आई कि ये तो हैक करके जो है इनको बुलाया गया था। तो इस तरह के चीजें जो है वो भी मज़ामती तहरीक इनके साथ कर रही है और इससे भी आप इनके उन झूठों का जो 75 साल इन्होंने दुनिया में फैलाए हैं कि हमारे पास को बड़े जनाब सॉफ्टवेयर हैं, हमारे पास को बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, और भाई मज़ामती तहरीक तुम्हारे वो सारे हैक किए जा रही है तो तुम्हारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है जो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। इसके अलावा आप इसराइली मीडिया के मुताबिक देखिए कि मज़ामती तहरीक के पास कौन कौन से नए और घातक हथियार पहुंच चुके हैं। ये आप उनका बयान सुनिए कि हमास यूज्ड न्यू वेपन्स व्हिच इज डेटोनेटेड बाय अ लेजर, The weapon is strange, destructive and deadly. It is believed not locally made. तो नए नए हथियार जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसराइल कहता है कि ये उनके लिए सरप्राइजिंग है, ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और डेडली हैं, यानी ये कोई नया लेजर हथियार जो है उन्होंने इस्तेमाल किया और वो कह रहे हैं कि ये एक तो लोकली मेड नहीं और ये बहुत ही हमारे लिए सरप्राइजिंग था, इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। सो ये तो मिलिट्री एक्सपर्ट पहले भी कह चुके हैं कि हर नेक्स्ट स्टेज ऑफ वॉर में जब हम नेक्स्ट स्टेज ऑफ वॉर में जाएंगे आपको मज़ामती तहरीक की नई जंगी सलाहितें, और अभी तक भी जो उनकी लीड फोर्स है मज़ामती तहरीकी उसने जंग में हिस्सा नहीं लिया। तो सोचिए कि जब वो जंग में आएगी तो फिर इनका क्या असर होगा। अभी तक इनको इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है और उन्होंने अपनी एलीट फोर्स इस्तेमाल ही नहीं की, हालांकि ये अपने सारे वसाइल सारी ताकत लगा बैठे हैं, पूरे जो रिसोर्सेज हैं इन्होंने इस्तेमाल कर लिए, जमीनी बहरी और बरी तमाम इस्तेमाल कर लिए, कोई कामयाबी नहीं मिली। देन आप देखिए एक और जो अटैक हुआ है, अटैक्ड व्हीकल्स विद होम मेड डिवाइसेस एंड लाइव बुलेट्स। तो कहीं पर वो बाहर के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो रशियन मेड हैं या चाइनीज़ या नॉर्थ कोरिया से आ रहे हैं, तो ये वो वाले हथियार भी इस्तेमाल हो रहे हैं और होम मेड जो वेपन्स है वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब इसराइल पूरी तरह से याह्या सिंवार के पीछे पड़ा हुआ है। याह्या सिंवार जो कि टॉप मोस्ट वांटेड है इस वक्त इसराइल के लिए, क्योंकि इस पूरी जंग का जो ब्रेन है
وہ याह्या समार है। वो एक शख्स जिसने पूरे इसराइल को तबाह बर्बाद कर दिया, इनके बयानियों को पाश पाश कर दिया, इनके असाब पर मुकम्मल तौर पर सवार हो गया, साइकोलॉजिकल वॉर में इनको बदतरीन शिकस्त दी, वो अकेला शख्स याह्या समार है। और ये वो शख्स है जो 15 साल इसराइल की जेल में रहा है। और इसराइल ने बड़ी कोशिश की, इनको बड़ी पेशकश की कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, इधर मज़ामती तहरीक को शिकस्त दे दो, लेकिन ये शख्स नहीं माना और ये भी डटा रहा कि मैं एक दिन रिहा हो जाऊंगा इनकी कैसे। एंड देन वो रिहा हुआ भी सही और इसकी पूरी फैमिली जो है वो शहीद हुई है, इसके बच्चे, इसकी बीवी, वो तमाम जो है वो शहीद हो चुके हैं। सो ये शख्स इस तरह पूरी जंग का ब्रेन है। और इसराइल ये समझता है अगर हम याह्या समार को पकड़ लेते हैं या उसको मार देते हैं तो फिर क्या होगा कि जंग का पासा पलट सकता है। सो ये आप देखिए कि वो कह रहे हैं हम 24/7 जो है पूरे रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए याह्या समार को तलाश कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि वो जहां भी होगा उसको हम पकड़कर जो है वो शहीद करेंगे। तो याह्या समार पूरी तरह से इनके ब्रेन्स पर सवार है। इसके अलावा आप देखिए कि उनका मीडिया किस तरह से चीख रहा है और बार बार जंग बंदी का मुतालबा कर रहा है। और वो इस बात का भी मुंह बोलता सबूत है कि आप लड़कर इनसे फतह हासिल नहीं कर सकते, निगोशिएशंस ही आपके पास आखिरी हल है। ये उनके फॉर्मर मुसाद चीफ, जो उनके फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ हैं, वो मीडिया पर बैठकर क्या कह रहे हैं कि इफ वी डू नॉट गो टू प्रिजनर डील we will create for ourselves additional 130 रॉन आर्ड। अब ये रॉन आर्ड जो है इनका एक पायलट था, बड़ा मशहूर था इनका, वो 1986 में मिसिंग हो गया था, इसी तरह से किडनैप हुआ, देन वो मिसिंग हो गया। तो वो कह रहा है कि 130 मोर प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो इनके पास प्रिजनर है फ़लस्तीन के पास, वो इनके 130 है। वो कह रहे हैं कि 130 फिर हमारे मिसिंग हो जाएंगे। यानी वो ये कह रहा है कि आप लड़कर इनसे फतह हासिल नहीं कर सकते, हमें प्रिजनर एक्सचेंज डील की तरफ जाना चाहिए। और वो डील क्या है कि सीज फायर करें एंड देन अपने कैदी ले जाएं और हमारे कैदी हमें दे दें। लेकिन नेतन्याहू क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि हम बाय फोर्स तुमसे लेंगे। और उनका मोसाद का फॉर्मर चीफ क्या कह रहा है कि तुम ये फोर्स के जरिए नहीं ले सकते, अगर तुम फोर्स इस्तेमाल करोगे तो ये 130 समझो गए, इनको हम हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ ओनली वे ये है कि सीज फायर करें, प्रिजनर एक्सचेंज डील लें, वगरना बात जो है वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। अब आपको इजिप्ट के हवाले से बताते हैं कि इजिप्ट किस तरह से जंग में शामिल होने जा रहा है और वहां पर कितनी तैयारी चल चुकी है। मिस्र के हवाले से उनके डिफेंस मिनिस्टर का गैर मामूली बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने पूरी सूरत हाल को क्लियर किया है। अब मिस्र क्यों जंग में शामिल होने जा रहा है और किस तरह हर सूरत वो जंग में शामिल होगा, ये पहले मैं आपके सामने एक और चीज रखना चाहता हूं जिससे आपको पूरी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, और वो है नेतन्याहू का ओरिजिनल प्लान। इसका सबूत भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये नेतन्याहू का ओरिजिनल प्लान क्या है, जो कि बहुत टाइम से है, वो है गजा और वेस्ट बैंक के लोगों को डिस्प्लेस करना, गजा के लोगों को इजिप्ट में और वेस्ट बैंक के लोगों को जॉर्डन में डिस्प्लेस करना। और इसके आर्टिकल के मुताबिक हर सूरत में, हर कीमत पर इस प्लान को अमल दरामद इस पर करवाया जाएगा। और इसके लिए अभी आने वाले चंद घंटों में, आने वाले 2-4 दिनों में आपको हमलों की शिद्दत और बढ़ती हुई दिखेगी। हालांकि इस वक्त भी बहुत ज्यादा बमबारी की जा रही है, बहुत ज्यादा बमबारी की जा रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आने वाले चंद घंटों जो घंटे हैं, जो दिन हैं, उसमें बमबारी और ज्यादा बढ़ेगी। मकसद क्या है? मकसद है लोगों को टेरराइज करके, उनमें फेर फैलाकर, खौफ फैलाकर उनको इजिप्ट में धकेलना। ठीक है, उनके लिए यहां पर कोई जगह ना छोड़ना, उनके लिए जिंदगी की कोई उम्मीद ना छोड़ना, उनके घरों को मुकम्मल तौर पर मलिया मेट कर देना। ये नेतन्याहू का ओरिजिनल प्लान है और इस पर हर कीमत में अमल दरामद करवाया जाएगा। और ये प्लान इसलिए है कि एक तो उनको और इकलौती जो फतह नजर आ रही है वो इसी प्लान में नजर आ रही है कि मज़ामती तहरीक से तो हम लड़ नहीं सकते, तो निहत्ते जो लोग हैं उनको यहां से खाली करवाया जाए और इसको एज अ मिलिट्री विक्ट्री जो है वो दुनिया के सामने प्रेजेंट किया जाए। फिर और भी इसके पीछे बहुत ज्यादा मकासद है गजा को हासिल करने के, आपके रिजर्व बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिजर्व यहां पर हैं। फिर जो उन्होंने कैनाल बनानी है यहां से, जो कि आलमी रूट बनेगा, वो भी गजा के बगैर नहीं बन सकता। तो बहुत सारी चीजें इसके पीछे पर्दा हैं इस ओरिजिनल प्लान के पीछे। इसलिए वो अब हर कीमत पर, कि जब इतनी बड़ी जंग छिड़ी गई है, जब पूरी दुनिया में जितना प्रेशर आना था वो आ ही गया है, तो अब ये मौका है, ये बेहतरीन मौका है कि अब हम पूरी तरह से इस प्लान पर अमल दरामद करवाएं और क्या है कि गजा के लोगों को यहां से सफाया करें। अब ये उनकी कैलकुलेशन है। हालांकि पूरी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट, इवन अब तो फ्रेंच के सदर मैक्रोन ने भी कह दिया, और बहुत सारे दुनिया में फॉर्मर एम्बेसडर्स और फॉर्मर मिलिट्री चीफ भी कह चुके हैं कि मिलिट्री जो विक्ट्री है वो मज़ामती तहरीक पर नहीं आप कर सकते। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये जो आपका प्लान है ये कामयाब हो जाएगा। लेकिन वो उनकी कैलकुलेशन है कि हम कर सकते हैं, क्योंकि वो ताकत के नशे में चूर हैं, वो फिरौन बने हुए हैं, तो उनके मुताबिक हमने ये हर सूरत करना ही करना है। तो अब जब उन्होंने पूरी तरह से ठान लिया है, तो अब जो है वो मिस्र का इस जंग में शामिल होना हर सूरत हो गया, नागुज़ीर हो गया। इससे पहले मिस्र कोशिश करता रहा कि इस प्लान से पीछे हट जाएं। उसने अमेरिका को कन्वे किया कि इनको कहें कि ये वाला प्लान जो अमल दरामद ना करें। लेकिन अब जब तय हो गया कि इस प्लान से वो पीछे नहीं हट रहे और ये उनका फुल एंड फाइनल प्लान है, देन इजिप्ट हैज टू एंटर द वॉर। अब पहले इजिप्ट के डिफेंस मिनिस्टर का बयान सुनिए, फिर आगे कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं कि द पैलेस्टीनियन इशू इज फेसिंग एन एक्सट्रीमली डेंजरस ट्रेंड एंड एन अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री एस्केलेशन। अब ये बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में
कैटेगोरिकली वो कह रहे हैं, बहुत ही गैर मामूली बयान है कि जो यहां पर हो रहा है वो बहुत ही डेंजरस है और अनप्रेसिडेंटेड, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी माजी में इतनी जंगें हुई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो एस्केलेशन होने जा रही है, ये जो मिलिट्री एस्केलेशन हो रही है और जंग होने जा रही है, इसकी माजी में भी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो वो बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि जंग आ रही है और ये जंग इतनी खौफनाक होगी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब आप रशियन इंटेलिजेंस का भी इस हवाले से बयान देखिए। रशिया की इंटेलिजेंस क्या कह रही है कि इजिप्ट हैज अ प्लान टू एंटर वॉर टू स्टॉप पैलेस्टीनियन डिस्प्लेसमेंट। अब रशियन इंटेलिजेंस क्या कह रही है कि इजिप्ट की पूरी तैयारी है कि वो गजा में दाखिल हो और जो इनकी फोर्सफुली डिस्प्लेसमेंट है उसको रोका जाए। और इजिप्ट के हवाले से ये भी खबर आई है कि उनकी जो फोर्सेस हैं वो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस पर हैं, यानी इंतहाई हाई अलर्ट पर हैं। वो स्टेज जिसके बाद आप हमला करते हैं, उस स्टेज पर इनके फोर्सेस को रखा गया है। तो इस हवाले से मैं बहुत सारी वीडियोस में पहले भी आपको बता चुका हूं कि इजिप्ट और आपका जॉर्डन ये जंग में क्यों शामिल होंगे। इसमें कोई आप छोड़ दें कि उनकी जो बतौर मुसलमान उनकी एक एफिलिएशन है, जो उनका फर्ज है, उसको साइड पर रख दें। ये उनकी अपनी सालिमियत का मसला है, ये उनकी अपनी जो है वो सलामती और नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। क्योंकि अगर ये गजा और आपका जो वेस्ट बैंक है ये मिट जाता है, देन जॉर्डन और इजिप्ट की अपनी नेशनल सिक्योरिटी पाश हो जाएगी, उनकी अपना जो मुल्क है वो ऑन स्टेक आ जाएगा। इसलिए इन दोनों की स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस ऐसी है कि जब वेस्ट बैंक के लोगों को आपने जॉर्डन में जबरदस्ती धकेलना है तो आप जॉर्डन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और जॉर्डन का पूरी तरह से निजाम दरहम बरहम कर रहे हैं। सेम जब आपने गजा के लोगों को इजिप्ट में धकेलना है, देन आप बड़ी साजिश के साथ इजिप्ट को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और देन यहां पर दंगे फसादात और डिस्टेबलाइजेशन करवाने के बाद, शायद सिविल वॉर छेड़ने के बाद, देन आप इन दोनों मुल्कों पर कब्जा करेंगे। जो आपका ग्रेटर इसराइल का प्लान है, इस पर ईरानी फॉरेन मिनिस्टर भी कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि ये इनका ग्रेटर इसराइल का प्लान है। देन यहां पर जो सिविल वॉर छिड़ेगी, जो तबाही होगी, देन आप इन सारे इलाकों पर भी कब्जा करेंगे। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है, इसके पीछे इतनी बड़ी प्लानिंग है। ठीक है, तो अपनी सलामती को बचाने के लिए जॉर्डन और मिस्र को हर सूरत जंग में जाना ही पड़ेगा। छोड़ दें उनकी एफिलिएशन को, वो साइड पे रख दें। सिर्फ स्ट्रेटेजिकली और ऑन रियलिटी में आपको बता रहा हूं कि ये इनकी मजबूरी है इस जंग में जाना। इसीलिए अब देखना, इनका अमेरिका का पालतू होना, उनके इन्फ्लुएंस में होना, वो अलग चीज है, वो वहीं पर है। अगर ये अमेरिका के पालतू ना होते तो इन्होंने बहुत ज्यादा रिएक्शन देना, तो ये तो दरवाजे पर बैठे हुए हैं और ये पानी का एक कतरा भी अंदर नहीं भेज सके। ठीक है, वो बात आप छोड़ दें, लेकिन मैं उससे अगली आपको बात बता रहा हूं कि ये कब तक पालतू बने रह सकते हैं। क्या ये अपना मुल्क ही उनके सामने बेच देंगे? तो ऐसा नहीं है, वो जहां तक पालतू बने हुए हैं वो बने हुए हैं, लेकिन जब बात यहां पर आ गई है, देन उनको इंटरवीन करना पड़ेगा हर सूरत में, और उसको अमेरिका भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये दरअसल असल चीजें हैं जो कि आपके सामने रखी हैं। आप अपनी राय से जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।